Let's continue the unit hydrocarbon from class 11th, unit 9, that what are the chemical properties of the alkane. Normally, these alkanes or saturated hydrocarbon are inert towards the most of the or almost the reagent. React नहीं करेंगे because they are stable, they are having a single covalent bond वहाँ पे बने हुए हैं. So they no need to be react with any of the reagent. But with the help of catalyst or under strong conditions, they can show various type of reactions. Here I wrote a few reactions of the alkane, that alkane chemical properties or the reaction shown by the alkanes, that they will show the substitution reaction. Substitution reaction में जो एक हाइड्रोजन है या सारे हाइड्रोजन दे विल गेट रिप्लेस्ड, बट यहाँ पे sunlight या concentrated H2SO4 and nitric acid will be there to carry out the reaction. Same for combustion, as they are not easy to react, but जब भी ये जलते हैं in the excess of air they will liberate carbon dioxide, heat and water. And oxidation, when they are doing the reaction with the oxygen in a controlled manner, we can convert them in alcohol, in carboxylic acids, or in the what we say is aldehydes. And isomerization, these जो हमारे alkane है, with the help of a reagent अंडर anhydrous AlCl3 जो कि हमारा Friedel-Crafts reagent है, in acidic medium they can show various type of structures having a same molecular formula but different structures, that is known as isomers, and the property is known as isomerization. They can be converted to aromatic compounds, and this will happen only from the sixth carbon. जो से 6 कार्बन है या उससे ज़्यादा की कार्बन है वही एरोमेटिक कार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड कन्वर्जन के लिए वी हैव टू बी प्रोवाइड द कैटलिस्ट एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल्सो. एंड रिएक्शन विद द स्टीम, अगर हम इसे वाटर वेपर के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, दे कैन गेट कन्वर्टेड into carbon monoxide. Along with there is a production of dihydrogen जो कि commercial method है for the production of a hydrogen gas. And last but not least, that pyrolysis, cracking, means when they are from जो higher है, जो हमारे बड़े वाले एल्कीन्स होते हैं जिसमें कि कार्बन एटम 15, 16, 17, 10, 12 ज़्यादा है, they can be break into the small alkane or alkene and other products, and this will also carried out at the in the presence of nickel or a palladium or a platinum at 973 Kelvin. So let's do the this chemical property or chemical reaction of alkane one by one. तो जो alkanes है यहाँ पे हम लिखेंगे chemical reactions, or we can write or properties. किसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं? We are talking about the alkane. So here we are talking about alkane having general formula CnH2n+2. These are the saturated जिसमें कि सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है. So now the alkane, they will show us the substitution reaction. Substitution reaction, यहाँ पे substitution reaction का mechanism भी है syllabus में, तो we will cover in a separate video lecture because otherwise this video lecture will be too lengthy. Substitution reaction where the one hydrogen can be get replaced, hydrogen replaced by another functional ग्रुप. इस कैटेगरी में हम पढ़ेंगे, इस कैटेगरी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? वी विल रीड अबाउट हैलोजिनेशन
यहाँ पे हेलोजन एटम लग जाता है, और वी कैन रीड अबाउट नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। तो जो एल्केन्स है, अगर हम इन्हें सनलाइट की प्रेजेंस में, जब आपने हेलोजिनेशन करना है तो यहाँ पे जो हमारा रिएजेंट रहेगा सनलाइट है, हम एक एक करके इसे साइड चेन सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और वी कैन से फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक एक करके हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हेलोजन एटम से, और जो हेलोजन की रिएक्टिविटी है दैट इज एफ, देन Cl, देन Br एंड देन I। इस तरह से ये इसके लिए रिएक्ट करते हैं। बट यहाँ ये जो है यहाँ पे मैकेनिज्म के साथ है, तो आई विल शो यू इन अ सेपरेट वीडियो लेक्चर फॉर दैट। तो सब्स्टिट्यूशन में हमने यही पढ़ना है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा या तो हेलोजन एटम से या फिर नाइट्रो ग्रुप से। नाइट्रो ग्रुप से जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो इस केस में मुझे जो कटलिस्ट चाहिए दैट इज द कंसंट्रेटेड HNO3 along with concentrated H2SO4। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे कैटलिस्ट चाहिए और नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। और जब हमने सल्फोनेशन करना है तो यहाँ पे हमें चाहिए कंसंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि जैसे मैंने कहा एल्केन्स जो हैं दे आर मोस्टली इनर्ट टुवर्ड्स ऑल द रिएजेंट, रिएक्ट नहीं करते हैं, पर हमें हाई और ड्रास्टिक कंडीशंस लेनी पड़ती हैं तब जाके ये रिएक्शंस कैरिड आउट होते हैं। तो मैंने सभी के लिए यहाँ लिख दिया। ये जो सब्स्टिट्यूशन है हेलोजिनेशन वाला, ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है जो कि हमारे एल्केन्स देते हैं दैट इज दी कंबशन। जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है, ये हम मैंने जर्नल लिख लिया है CnH2n+2। किसी भी एल्केन का मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन किसी का नाम नहीं लिखा, जर्नल फॉर्मूला लिखा है, और साथ में एक्सेस ऑफ जो एयर है उस इसमें की ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करेगा, जिसके लिए हम इस तरह से लिख लेते हैं। एंड वी विल गेट, हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वी आर गेटिंग दी वाटर, एंड along with that lots of heat will be coming out। ये बहुत सारी हीट लिबरेट करते हैं, इसीलिए इनको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर हैविंग LPG at our home for the cooking purposes, because it's producing lots of heat। We are having a petrol, diesel, kerosene in our ऑटोमोबाइल, सो बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग सो मच हीट। तो यहाँ पे कंबशन, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि कंबशन है तो ये यूज किए जाते हैं एज अ फ्यूल्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसकी हो गई। देन वी विल, ये एक प्रॉपर्टी है। देन लेट्स डू दैट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन। जब हम कंबशन की बात करते हैं तो वी आर सेइंग दैट फॉर द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दे आर रिएक्टिंग, और जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो मीन्स वी आर सेइंग ओनली लिमिटेड और कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर हमारे पास मीथेन है और मैं इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेती हूँ और इसे मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ कंट्रोल्ड मैनर में, और कैटलिस्ट हम लेते हैं कॉपर, along with I will take a 523 केल्विन टेम्परेचर एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेंगे, तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू दी अल्कोहल। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये कैटलिस्ट है, एज ए नॉर्मल तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ये वाला कैटलिस्ट लिया तो हमने इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से अगर मैं मीथेन ही ले लेती हूँ और हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, हम यहाँ पे मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड लेते हैं, एंड व्हाट वी विल गेट द मिथेनॉल। तो जैसे जैसे कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा वी आर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट। यहाँ मुझे अल्कोहल मिला, यहाँ मुझे एल्डिहाइड मिला। इसी वे से हम लोग एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, वी विल टेक द इथेन CH3 और 2 प्लस हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, एंड दिस वी आर कैरिंग आउट इन द
presence of मैग्नीज सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो हम लिख देंगे दिस इज ऑक्सीडेशन गोइंग ऑन एंड वी विल गेट CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गई। तो जैसे जैसे कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट भी चेंज हो गया है। एज आई सेड कि ये तो रिएक्ट करते ही नहीं है, इनर्ट है, बट कंडीशंस चेंज की, कैटलिस्ट चेंज किया, प्रोडक्ट भी चेंज हो गया। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन शोन बाय दिस इज आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन मैंने पहले भी इसी टॉपिक पे डिस्कस किया है कि व्हाट आर आइसोमर्स। आइसोमराइजेशन मीन्स the property of a compound to exist in a various structure but they are having a same formula, molecular formula same रहेगा but it can be exist in a different structure जिसको हम chain isomer भी कहते हैं। chain तो obviously बात है it will get a different size also, then chain का जो numbering है वो कम हो जाएगी। for example यहाँ पे isomerization का meaning है the property of alkanes जो कि ना फोर्थ कार्बन से स्टार्ट हो, थर्ड कार्बन तक कुछ नहीं है। जो मीथेन है उसमें कोई आइसोमर नहीं होता, इथेन का कोई आइसोमर नहीं है, प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं है। आइसोमर जो बनते हैं दे विल स्टार्ट फ्रॉम कार्बन 4, 3 कार्बन तक कोई आइसोमर नहीं बनता। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स यहाँ लिख देते हैं n = 4, ठीक है, 4 के बाद टू exist in different structures, ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में रहने की जो उसकी प्रॉपर्टी है उसे हम आइसोमराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसको ले लेते हैं, लेट टेक हेक्सेन। हेक्सेन लेते हैं जिसमें कि कार्बन एटम C6 और H14 हो जाएगा। इट कैन बी एग्जिस्ट एज, दो तरह से एग्जिस्ट करेगा, 2-methyl pentane and 3-methyl pentane। वैसे ये पेंटेन इधर ही लिखा होना चाहिए, नीचे नहीं लिखा होना चाहिए, वो बीच में आप मीन्स दे विल नॉट गेट कंजस्टेड, तो मैंने इसलिए लिख दिया है। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है किसकी प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस। This will occur in the presence of anhydrous AlCl3 plus HCl। ये फ्रिडल-क्राफ्ट रिएजेंट है, इसकी प्रेजेंस में जो कोई भी कंपाउंड है स्पेशली एल्केन है वो अलग अलग स्ट्रक्चर में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज C6H14। और 2-methyl पेंटेन की बात की है, कैसे एग्जिस्ट करेगा, 1 2 3 4 5, 2 पे हमने क्या लगा देना, मिथाइल, और रेस्ट जो है आप कार्बन की वैलेंसी को जस्टिफाई कर दें। तो दिस व्हाट वी आर हैविंग 2-methyl pentane। यहाँ 3-methyl pentane बोला है तो 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से कहीं पे भी काउंट करके आ जाइए, जहां पे आपको 3 एक ही जगह पे मिलेगा तो हम यहाँ पे उसकी साथ मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। तो ये इसमें भी और इनमें भी, हेक्सेन में, सभी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट द प्रॉपर्टी टू एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमर्स, isomerization। These are isomer of hexane, the and इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमराइजेशन कहते हैं। These are the isomers, they are having a different structure, they are also known as chain isomer because chain यहाँ पे हेक्सेन है, यहाँ पे पेंटेन है, चेन जो है इट गेट स्मॉल एंड तो इसे इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमराइजेशन कहते हैं। दिस विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड एसिड लेने साथ में HCl हमने ले लिया है। मैंने यहाँ सभी जगह पे कैटलिस्ट लिखे हुए हैं कि किस किस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड द एरोमेटाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएंगे, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई है। इसमें भी अब कार्बन 1 जो है वो तो नहीं बनाएगा बेंजीन रिंग को, 2 भी नहीं, 6 कार्बन ऑनवर्ड, 6 कार्बन से लेके जब कार्बन चेन में 6 कार्बन होंगे,
पेरेंट चेन 6 कार्बन की होगी या उससे ज्यादा होगी, देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक रिंग। और ये रिएक्शन जो है इट विल कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर शुड बी 773 केल्विन एंड 10 to 20 एटमॉस्फेयर, देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वी विल टेक दैट एल्केन ले लेते हैं, स्पेशली हेक्सेन लेंगे क्योंकि हेक्सेन से पहले तो ये होगा ही नहीं। और आइदर वी विल टेक अ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड एंड वी विल टेक 773 केल्विन टेम्परेचर along with 10 to 20 atmospheric pressure and it will get converted into the बेंजीन रिंग। और अगर यहाँ पे C7H16 होता तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू टाउलिन। तो जैसे ही हमारा जो पेरेंट चेन है वो चेंज हो जाएगी, आप यहाँ पे वेनेडियम पेंटॉक्साइड भी ले सकते हैं। तो ये अलग अलग कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट ये भी सेम ही चलेगा, मतलब यहाँ पे कैटलिस्ट होनी चाहिए, देन वी आर गेटिंग अ एरोमेटिक रिंग फ्रॉम द एल्केन। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस एल्केन इज दैट इज द क्रैकिंग एरोमेटाइजेशन। हम यहाँ पे इसे क्रैकिंग कह लेंगे। क्रैकिंग का मतलब होता है तोड़ देना, या फिर इसे हम पायरोलिसिस भी कहते हैं। क्रैकिंग और पायरोलिसिस मीन्स बड़े जो कार्बन चेन्स हैं दे विल गेट स्प्लिट इनटू द स्मॉलर वन। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं C12 और फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ हो जाएगा 26। इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू हेप्टेन, हेप्टेन प्लस पेंटीन। मैंने 12 को तोड़ना था ना 7+5 में, तो ये जो रिएक्शन है इट विल ऑल्सो अकर इन द प्रेजेंस ऑफ या तो निकल ले लो या प्लेटिनम ले लो या प्लेडियम ले लो, और टेम्परेचर यहाँ 973 केल्विन होगा। ठीक है जी। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन एल्केन इज द रिएक्शन विद द स्टीम। रिएक्शन विद स्टीम, तो ये जो रिएक्शन विद स्टीम है इसमें जो एल्केन है हम सिंपल फर्स्ट एल्केन ले लेते हैं, और साथ में मैंने वाटर ले लिया है, और एट 1273 केल्विन और कॉपर की प्रेजेंस में इट विल गिव अस अ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाईहाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है इसे कमर्शियल मेथड पे बनाते हैं इसी तरीके से, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड फ्यूल। सो नाउ वी आर मेकिंग दिस डाईहाइड्रोजन बाय दिस मेथड फ्रॉम द एल्केन्स। So these are the various property of the alkanes under drastic conditions, though they are less reactive or mostly inert towards any reagent, but in the presence of a catalyst, high temperature, pressure, they are showing the various properties.